Very good morning, all of you. Welcome back. I hope you all are fine, my dear friends, and you're watching English by Joseph, ma'am. All my viewers, those who are watching me, thanks for your support. Thank you so much for your comments and support. And because of your comment and support, I am like trying to improve. मैं और कोशिश कर रही हूँ कि आप तक अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकूँ. So without wasting any time, let us begin our class. Okay, so today I brought a new topic for you all. Sentence making. Now what is sentence making? Sentence making is like कोई भी word को लेके आप sentence बनाते हो. Now you all must be known. आप लोग पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर से. A sentence is a group of word. एक word है जो हर एक words को मिला के proper sentence बनता है. एक word बनता है. Like for example, like girl is the पूरे को मिला के proper sentence जो एक proper sense बनता है, तब आप बोल सकते हो उस चीज को proper तरीके से. like for example ऐसे, is girl running, so is it making any sense? girl दौड़ रहे है, तो ऐसे कोई sentence बन रहा है, कोई शब्द बन रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा उसमें, nothing. so when sentence ये होता है कि आप इस words को उठा करके proper तरीके से आप properly पेश करके प्रॉपर तरीके से लिख के और फिर जॉइंट वर्ड्स को करते हैं ना, प्रॉपर मीनिंग बनता है, तब उसको सेंटेंस बोलते हैं. लाइक द गर्ल इज रनिंग, नाउ इट्स मेकिंग अ सेंस. द गर्ल इज रनिंग, लड़की दौड़ रही है. अब आपको समझ में आ रहा है, यस द गर्ल इज रनिंग. another thing, another most important thing in sentence making, when you especially for writing part I'm telling you, when you are writing, जब आप लिखते हैं, और सेंटेंस जो होता है ऑलवेज इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. मतलब कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, बड़े अक्षर से. नो फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर, टीना इज रेडी टू गो टू द पार्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल, टीना इज द नेम ऑफ अ गर्ल. टीना एक लड़की का नाम है. सो ऑलवेज अ नेम और अ प्लेस, विच एवर थिंग, वट एवर, नेम प्लेस एनिमल थिंग. आप लोग पहले क्लासेस में बचपन में ये सब चीज़ें खेलते हो, अभी भी कुछ बच्चे बहुत खेलते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग. सो नेम, विच एवर नेम इज देयर, लाइक कोई भी प्रॉपर नेम, एनिमल्स नेम, पर्सन्स नेम, प्ले स्पीकिंग country's name, all begins with a capital letter. Another most important thing is it always, after when you write the sentence in a capital letter, you also have a full stop here. Sorry, this is a mark over here. It also, it has a full stop. That means the sentence is complete. So here there is a sentence over here, one word, ready, R-E-A-D-Y, ready. Ready मतलब तैयार होना. The guests are ready to come. Children are ready to take the class. To have or sitting, the children are ready for the lunch. मतलब तैयार है, lunch is ready. ऐसी चीजें sentence में बनता है word से, one word. Now I have written here, Tina is ready to go to the party. Tina is ready to go to the party, and here is a full stop here. So whenever you make a sentence, they should have a complete full stop. A complete sentence first of all, proper sentence जो meaning रखता हो, जिसमें समझ में आना चाहिए कि हाँ ये sentence है. Another thing, it always has a full stop. जब भी कोई sentence को complete करते हो तो उसमें full stop भी लगाना जरूरी होता है. Okay. Now today I brought some words in front of you. There are words over here. Words से words में लेके आई हूँ आप लोग के लिए. In that you have to make sentences very small. Why? Because I want you to practice this. Because what I said in the very first beginning, जितना आप practice करोगे English बोलना, उतना आप perfect होगे. So now what it is, क्यों हमने आज sentence making क्यों रखा है क्लास में, sentence making? That means I want you all to think. वर्ड्स को सोचिए, शब्द बनाइए और फिर उसको हिंदी में पहले लिखिए. तो जब आप वर्ड्स को सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद आपके ऊपर जो आपके माइंड में वर्ड्स आएंगे कि कैसे इसको और इसको लिखना है, किस तरीके से इंग्लिश में तैयार करना है सेंटेंस को. नाउ द फर्स्ट वर्ड इज रेडी. सो नाउ आई रोट, हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, टीना इज रेडी टू गो टू द पार्टी. मतलब टीना पार्टी के लिए तैयार है. नाउ एवरी, EVERY, एवरी. एवरी मतलब सब लोग, सब चीजें एवरी में आता है, मतलब सब चीज. सो ना एवरी से व्हाट सेंटेंस में क्या सेंटेंस बनाएंगे. अब जैसे अब हिंदी में आपके मन में आ गया कि एवरीवन इज, सब लोग तैयार हैं, सब लोग बैठे हैं,
सब लोग खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें अब आपके माइंड में आ गई हिंदी में। नाउ आप उसको पेन डाउन करिए लिखने के लिए। जब आप लिखेंगे तो आप बोलना सीखेंगे, एंड यू हैव टू स्पीक इट अप। जितना आप बोलोगे, पहली चीज़ तो इंग्लिश में हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपको सुनना है और बस बोलना है। बट योर आई वॉट प्रैक्टिस इन राइटिंग ऑल्सो। आप प्रैक्टिस करोगे, वर्ड्स को निकाल के हिंदी में फिर उसको इंग्लिश में लिखना है, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मेमोराइज करके आप बोल पाओगे इसको। फिर आपको लिख करके फिर आपको उसको स्पीक करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप बोलना सीखिए। ओके, एवरी, वर्ड एवरी मीन्स सब लोग, सो एवरी वन इज रेडी, सिंपल, एवरी वन इज रेडी, सब लोग तैयार है। नेक्स्ट वेंट। नाउ वेंट, ये जो वेंट है इट इज इन द पास्ट टेंस, मतलब पास्ट में। हम गए थे, हम गए थे, हम कल गए थे। सो वेंट, ही वेंट टू द पार्टी। नाउ अगर यहाँ पे हम टीना को यूज करते हैं वेंट में, तो टीना वेंट टू द पार्टी, मतलब टीना पार्टी में गई थी, टीना वेंट टू द पार्टी। नाउ यू कैन मेक एनी अदर सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड वेंट, एडिंग एनी अदर इन द वे, different way. Daily, daily means रोज। I'm daily having a English class with you all. The milkman comes daily, दूध वाला रोज आता है। तो डेली से आप सेंटेंस को फॉर्म करके उसको आप यू कैन वट एवर दैट, जो मैं आपने आपको बोला है कि वो रोज आप करते हो, डेली डेली चीज़ों को यूज़ करते हैं, आपने माइंड में डेली आप चीज़ों को हिंदी में बोलते हैं, तो उसी चीज़ को वर्ड्स को डेली उठा करके आप सेंटेंस में बनाइए। डेली से जो भी आप यूज़ करते हो उसको उसी में सेंटेंस आप बनाओ। नाउ कंट्री, कंट्री वेरी सिंपल, वी लिव इन अ कंट्री, my country's name is India, I love my country, simple sentences. So when you will know to make the sentences, you will be able to speak it up. Next is music. I love music, I love jazzy music. कुछ लोगों को बहुत ही तड़कता भड़कता म्यूजिक पसंद है, कुछ लोगों को बहुत सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, एंड आई लाइक जैजी म्यूजिक। जैजी मतलब बहुत ही भड़कीला वाला म्यूजिक पसंद है। सो इन दैट यू कैन मेक सेंटेंसेस फ्रॉम म्यूजिक। नेक्स्ट इज करेक्ट। नाउ करेक्ट इज यू कैन से सेंटेंस अलग फॉर्म में भी बन सकता है। करेक्ट का मतलब होता है सही करना। अनदर वे यू कैन से प्लीज करेक्ट योर लैंग्वेज, अपनी जुबान को प्लीज करेक्ट, जो वे आप बोलते हो जिस तरीके से उसको सही करिए। तो इस तरीके से भी फॉर्म में आप बना सकते हैं सेंटेंस। ओके, प्लीज करेक्ट योर कॉपीज। करेक्ट योर कॉपीज मीन आप अपने कॉपीज को करेक्ट करो कि कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं, तो मैम को साइन करेंगी। सो करेक्ट इन दैट वे ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अ सेंस। नेक्स्ट, फूड। आई लव फास्ट फूड, आई लव टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑलवेज, हमेशा। यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, यू आर ऑलवेज क्राइंग। इस तरीके से ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। सो इससे आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो। यू आर ऑलवेज क्राइंग, यू आर ऑलवेज लाफिंग, यू आर ऑलवेज सिंगिंग। कुछ लोग हमेशा गाना गाते रहते हो आप, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट, मनी। अब मनी, एवरीवन वांट्स मनी, प्लीज गिव मी सम मनी। अब अगर आप किसी से मनी मांगेंगे, तो पैसे मांगेंगे, तो आप हिंदी में बोलेंगे मुझे कुछ पैसे दे दो, प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। सो इंग्लिश में कैसे आप फॉर्म करोगे? प्लीज लेंड मी सम मनी। नाउ आई वांट यू ऑल टू मेक सेंटेंस फ्रॉम दीज वर्ड्स, एंड प्लीज ऑल्सो कमेंट मी, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हो। ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या तो मुझे बस सुनते ही नहीं सुनते, मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज आई डोंट गेट एनी कमेंट्स। सो आई वांट योर कमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स, दोज हु आर वाचिंग मी। आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे आपके रिस्पॉन्स भी चाहिए। इस सेंटेंस से और क्या बन सकता है? मैंने बोला प्लीज गिव मी सम मनी और प्लीज लेंड मी सम मनी, मतलब मुझे उधार चाहिए। अब इससे सेंटेंस और कुछ अलग से आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा। एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द आइकन बटन, जो बेल बटन है उसको प्लीज प्रेस करिएगा, ताकि जो अपकमिंग नोटिफिकेशन जो अभी न्यू वाले आएंगे मेरे वीडियोस, वो आप तक पहुंच सके। ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्लेवर। यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत चालाक हो, आप बात भी करते हो और फिर अपना प्रमोशन की बातें भी करते हो। सो लाइक दैट यू कैन मेक क्लेवर। क्लेवर, द चाइल्ड इज वेरी क्लेवर इन स्टडीज, बच्चा बहुत होशियार है, स्मार्ट है पढ़ने में, क्लेवर। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द वर्ड बिलीव। बिलीव मतलब भरोसा करना। प्लीज यू हैव टू बिलीव मी, तुमको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। ओके, फार्मर। फार्मर क्या होता है?
a farmer is a very, what you can say, a very helpful person. क्यों? क्योंकि हम लोग अगर फार्मर्स अगर बीज नहीं बोएंगे, अगर वो अनाज नहीं बोएंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाएगा खाने के लिए. So farmer is a person who is very important for us. Next is wonderful. You are a wonderful person. अब wonderful मतलब बहुत अच्छे इंसान जैसे कह सकते हो. Wonderful कितना अच्छा इंसान. तो it was a wonderful program. कुछ प्रोग्राम अगर कहीं हुआ है तो अगर प्रोग्राम it was a wonderful program, और you sang wonderful, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो wonderful से. Today was a wonderful day. आज का दिन अच्छा था तो आप बोलेंगे wonderful day. Today was a wonderful day. Hot. Hot आप जानते हो, गरम. I like to have hot coffee. The sun is very hot. Small sentences. तो जब आप सेंटेंस, जब आप छोटे छोटे वर्ड से जब सेंटेंस आप बनाओगे, तब क्या होगा? फिर आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा. खुद ब खुद आप सेंटेंस लिख पाओगे और खुद ब खुद आप बोल भी पाओगे आप. तो दिस इज अ प्लस पॉइंट. इसलिए मैंने आज ये सेंटेंस को आपके सामने लेके आई हूँ. नेक्स्ट इज प्रॉमिस. सो प्लीज प्रॉमिस मी कि आप लोग ऐसे करेंगे. प्रॉमिस मी दैट यू विल लर्न इंग्लिश by writing the spellings, by writing the sentences. So मैंने ये sentence बनाया आप लोगों के लिए. So promise you can make another sentence from that. Next, cricket. We all I like to play cricket. I love cricket. Change. Please change. The change has different meaning when you say it in a different way. अलग अलग तरीके से change को आप word में बोल सकते हो. Please change your clothes. Please change the way you speak. अपना जो आपका बोलने का तरीका है, प्लीज उसको बदल लो. इस तरीके से आप बोल सकते हो. नेक्स्ट इज फेवर. फेवर मतलब प्लीज एक काम कर दो, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको फेवर बोलते हैं. प्लीज डू मी अ फेवर. प्लीज गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी. इस तरीके से आप कर सकते हो. नेक्स्ट इज मिशन. मिशन से क्या होता है? जैसे कोई काम को मतलब कोई चीज अगर जो काम आपको दिया हुआ है तो उसको आपको करना है. नाउ माय मिशन इज टू टीच यू ऑल इंग्लिश. नाउ व्हाट इज योर मिशन? आप उसको सेंटेंस में कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट करके. ओके, नेक्स्ट, टाइम. टाइम इज वेरी प्रेशियस. आई सेड, मैंने सेंटेंस टाइम से बनाया. द टाइम इज वेरी प्रेशियस. नाउ व्हाट विल यू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम टाइम, and let me know in that. Okay, now coming to these words, these last words from 22 to 30, from 22 to the 30th words, they are senses, mind, forgiven, shouting, tackle, busy, tax, innocent and play. Now senses means होश में. कभी कभी आप लोग जस्ट नॉर्मली जो बात करते हैं अपने होश में रह के बात किया करो. ऐसे बोलते हैं ना, अपने होश में रह के. प्लीज टॉक ऑन इन योर सेंसेस. तो ऐसे आप सेंटेंस बना के सेंसेस से भी आप इस वर्ड को ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट इज टैकल. टैकल मीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना. कोई भी बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो उसको कैसे हैंडल करना, उसको टैकल बोलते हैं. बाकी वर्ड्स है फॉरगिवन, मतलब किसी को माफ करना. नाउ माय डियर व्यूअर्स, आई वांट यू ऑल, दिस इज एज अ होमवर्क फॉर यू ऑल. So I want you all to from these words, आप इस वर्ड से प्लीज सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि मुझे पता होना चाहिए कि आपको मेरा आज का क्लास आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा. मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा. जो सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जो दिख रहा है, ये सेंटेंस से आपको वर्ड्स बनाने, जो वर्ड्स है आपको उसे सेंटेंस बना के मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. So that I will also know that yes, you are understanding what I am teaching, you are able to understand. And thanks for watching me. Till then, goodbye. God bless you. See you.